کیا آپ جانتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں جدید زرعی مشینری کی مدد سے فصلوں کی کٹائی محض چند گھنٹوں میں مکمل کر لی جاتی ہے، جبکہ پاکستان میں روایتی طریقوں سے ہفتوں لگ جاتے ہیں؟ ہم پیچھے کیوں ہیں؟ جانیے جدید مشینری اور سولر پاور کے وہ راز جو آپ کی پیداوار کو کئی گنا بڑھا سکتے ہیں۔ جی بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر اس شخص کے ذہن میں آتا ہے جو ہماری زراعت کے موجودہ حالات دیکھتا ہے۔ تو کیا واقعی ہم زراعت میں اتنا پیچھے رہ گئے ہیں؟ مطلب آج کی اس سائنسی نشست میں ہم اسی معمے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ جانیں گے کہ ٹیکنالوجی کس طرح ہماری دیہی معیشت کا نقشہ بدل سکتی ہے۔ بالکل، اور آج کا یہ تفصیلی تجزیہ ایک انتہائی اہم پریزنٹیشن پر مبنی ہے جو JQ گلوبل ایگریکلچر کی جانب سے فراہم کی گئی ہے۔ ایگریکلچرل انجینئرنگ اور ٹیک لٹریسی کو اس طرح سمجھنا ہے کہ یہ صرف کتابی اصطلاحات نہ رہیں بلکہ ان کا عملی فائدہ نظر آئے۔ بات صرف ٹریکٹر چلانے کی نہیں ہے بلکہ پوری زرعی سپلائی چین کی سائنس کو سمجھنے کی ہے۔ تو چلیں وقت ضائع کیے بغیر آغاز کرتے ہیں۔ ناؤ وی ایکسپلین فرسٹ تھمبنیل سلائیڈ۔ جی، تو اس پہلی سلائیڈ کا عنوان ہے ہائی ٹیک فارم میکانائزیشن۔ اب سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ سائنسی تحقیق کہاں سے رہی ہے۔ صحیح، یہ دراصل JQ گلوبل ایگریکلچر نامی ایک فیس لیس ایجوکیشنل چینل کی کاوش ہے اور اس کی قیادت ایک انتہائی نامور سینئر سوئل سائنٹسٹ محمد جاوید قمر کر رہے ہیں۔ اچھا، تو ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ مطلب وہ کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ان کا اصل مقصد کسانوں کو تعلیم دینا اور زراعت کو پرانے فرسودہ طریقوں سے نکال کر خالصتاً جدید سائنسی بنیادوں پر کھڑا کرنا ہے۔ ان کی یہ جو ایگریرین پالیسی سیریز ہے وہ اسی ویژن کا حصہ ہے۔ جی، یعنی یہ ایک طرح کا تعلیمی سیمینار ہے جو کسانوں کو سمارٹ فارمنگ کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اور اس میں جو ایک بہت بڑی خبر مجھے نظر آئی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا 30 ارب روپے کا منصوبہ ہے، مطلب PKR 30 بلین انیشیٹو۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ لیکن جب میں نے یہ اعداد و شمار دیکھے تو میرے ذہن میں آیا کہ کہیں ہم دہائیوں پرانی خستہ حال سائیکل سے اتر کر سیدھا سپورٹس کار میں تو نہیں بیٹھ رہے۔ یہ سپورٹس کار والی مثال آپ نے بہت دلچسپ دی ہے۔ مطلب سمارٹ فارمنگ کا تصور تو بہت شاندار ہے، لیکن کیا صرف 30 ارب روپے کا بجٹ اس بڑی تبدیلی کے لیے کافی ہے؟ مشین تو آ جائے گی لیکن کیا کسان اسے سمجھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے؟ دیکھیں، اصل میں یہ 30 ارب روپے صرف لوہے کی مشینیں خریدنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اس پوری زرعی معیشت کو متحرک کرنے کا ایک انجن ہے۔ جاوید قمر صاحب کا فوکس اسی بات پر ہے کہ اسمارٹ فارمنگ صرف پرزوں کا نام نہیں ہے۔ تو پھر کس چیز کا نام ہے؟ یہ ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلے کرنے، مٹی کی ساخت کو سمجھنے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے وسائل بچانے کا نام ہے۔ یہ بجٹ دراصل اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے۔ اچھا، یعنی مقصد صرف ہارڈ ویئر دینا نہیں بلکہ وہ سوچ دینا ہے جو اس ہارڈ ویئر کو منافع بخش بنائے۔ مطلب اگر ہم سپورٹس کار لے بھی آئیں تو ڈرائیونگ کی مہارت تو چاہیے نا، ورنہ تو حادثہ ہو جائے گا۔ جی بالکل، 100% درست کہا آپ نے۔ ٹریننگ کا بغیر مشین کا کوئی فائدہ نہیں۔ خیر، یہ تو ہو گئی اس کی بنیادی سوچ، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پورے ماڈل کے اصل اہداف کیا ہیں۔ اب ہم اگلی سلائیڈ پر جاتے ہیں جس کا عنوان ہے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز۔ جی، تو اس سلائیڈ پر اگر ہم غور کریں تو 4 انتہائی اہم مقاصد وضع کیے گئے ہیں۔ پہلا ہے فصلوں کی پیداوار میں پائیدار اضافہ، یعنی سسٹینیبل انکریز ان کراپ ییلڈز۔ صحیح۔ دوسرا ہے انتہائی منافع بخش زرعی کاروبار، یعنی ہائیلی پروفیٹیبل فارمنگ انٹرپرائز بنانا۔ تیسرا دیہی معیشت کی ترقی ہے اور چوتھا زرعی برآمدات میں اضافہ ہے۔ یہ چاروں ایک زنجیر کی طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ذرا ٹھہریں، میں یہاں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ پیداوار بڑھے گی تو معیشت بہتر ہوگی، لیکن کھیت میں چلنے والی ایک اکیلی جدید مشین پورے گاؤں کی معیشت کیسے بدل سکتی ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ عام تاثر تو یہی ہے نا کہ مشین آئے گی تو مزدوروں کی نوکریاں چھین لے گی، پھر دیہی معیشت اپلفٹ کیسے ہوئی؟ دیکھیں، یہ ایک بہت عام خدشہ ہے، لیکن حقیقت میں معاشی پہیہ اس کے بالکل الٹ کام کرتا ہے۔ جب ہم ہائی ٹیک مشینری استعمال کرتے ہیں تو کٹائی کا وقت ہفتوں سے کم ہو کر گھنٹوں پر آ جاتا ہے۔ جی، وقت تو بچتا ہے اور فصل کا ضیاع حیرت انگیز طور پر کم ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کسان کے پاس فی ایکڑ زیادہ نہ جاتا ہے جسے بیچ کر وہ زیادہ منافع کماتا ہے۔ صحیح، یعنی وہ ایک روایتی کاشتکار سے ایک باقاعدہ بزنس مین بن جاتا ہے۔ بالکل، اور اسے ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے مضبوط کرتے ہیں۔ اب وہ کسان اپنا کمایا ہوا پیسہ شہر جا کر نہیں بلکہ اسی گاؤں یا قصبے میں خرچ کرے گا۔ مقامی دکانیں چلیں گی، ورک شاپس کھلیں گی، ٹرکوں کی مانگ بڑھے گی۔ اچھا، مطلب نوکریاں ختم نہیں ہوں گی بلکہ ان کی نوعیت بدل جائے گی، مزدور اب ٹیکنیشین بن جائے گا۔ جی بالکل، اور جب ہر گاؤں سے پیداوار بڑھے گی تو ہمارے قومی گودام بھر جائیں گے اور تبھی ہم اقوام متحدہ کے زیرو ہنگر جیسے بین الاقوامی اہداف پورے کر سکیں گے۔ اور پھر وہی اضافی اناج ہم باہر بیچ کر زرعی برآمدات میں اضافہ کر سکتے ہیں، یعنی بوسٹ ایگریکلچرل ایکسپورٹس۔ ماڈل تو بہت زبردست ہے۔ جی واقعی، لیکن جب میں اس کی عملی صورتحال کا سوچتی ہیں تو ایک بہت بڑا مسئلہ نظر آتا ہے۔ یہ جدید مشینیں کروڑوں کی ہوتی ہیں، تو کیا حکومت کو لگتا ہے کہ ایک عام کسان اپنی زمین بیچ کر یہ مشینیں لے گا؟ اب ہم اگلی سلائیڈ پر جاتے ہیں جس کا عنوان ہے فائنینشیل میکینکس۔ جی،
इस स्लाइड में इस 30 अरब रुपए के बजट और 3 करोड़ रुपए के बिला सूद कर्जों का जिक्र है। साथ ही 12 मुख्तलिफ अकसाम की जदीद मशीनरी और सर्विस प्रोवाइडर्स का भी वाज़ेह जिक्र है। तो यहीं पर मेरी उलझन दूर होती है कि हुकूमत हरगिज ये तवक्को नहीं कर रही कि एक छोटा किसान जिसकी 2 एकड़ जमीन है वो 3 करोड़ का कर्जा ले। जी बिल्कुल नहीं, हुकूमत की हिकमत अमली बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो फिर ये 3 करोड़ का कर्जा किसे मिल रहा है? मतलब क्या ये कुछ उबर या ड्राइव वाला मॉडल है? आपकी मुराद सर्विस प्रोवाइडर मॉडल से है? जी, मतलब जैसे गाड़ी किसी और की होती है, मैं सिर्फ अपनी जरूरत के वक्त बुलाती हूँ और किराया देती हूँ। क्या खेतों में भी ऐसा ही उबर फॉर हार्वेस्टर्स चलने वाला है? आपने इस पेचीदा फाइनेंशियल मॉडल की बिल्कुल बेहतरीन तशरीह की है। ये बिल्कुल वही मॉडल है। इलाके का कोई पढ़ा लिखा नौजवान हुकूमत से ये बिलासूद कर्जा लेगा और वो इस फंडिंग से 12 मुख्तलिफ अकसाम की हाई टॉर्क जदीद मशीनरी का एक फ्लीट बनाएगा। एक मिनट, ये हाई टॉर्क का लफ्ज थोड़ा तकनीकी है। क्या इसका मतलब बड़ी और भारी मशीनें हैं जो बहुत ज्यादा तेल पीती हैं? नहीं नहीं, हाई टॉर्क का ताल्लुक तेल पीने या मशीन के साइज से नहीं है, बल्कि उसकी खिंचाव की ताकत से है। अच्छा जी, आम जबान में समझें तो टॉर्क वो कुव्वत है जो किसी चीज को पूरी ताकत से घुमाती है। ज़राई मशीनों में हमें दौड़ने की स्पीड नहीं चाहिए होती, हमें खींचने की ताकत चाहिए होती है। सही, मतलब जब मिट्टी सख्त हो तो मशीन बंद ना हो। बिल्कुल, हाई टॉर्क इंजन बगैर बंद हुए मुसलसल काम कर सकता है। ये ईंधन कम लेते हैं लेकिन ताकत बेमिसाल होती है। अब वो नौजवान अपनी मशीनें छोटे किसानों को किराए पर देगा। अब बात पूरी तरह समझ में आई, यानी छोटे किसान का सरमाया महफूज रहा और देही नौजवान को कारोबार मिल गया। लेकिन मुझे अब भी एक बात परेशान कर रही है, हमें इतनी महंगी और जदीद मशीनों की जरूरत पड़ी ही क्यों? बरसों से गंदम और चावल की कटाई तो हो रही थी, अचानक ये बहरान कहाँ से आ गया? अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है द हार्वेस्टिंग क्राइसिस। जी, इस स्लाइड पर इसी पोशीदा मगर संगीन कटाई के बहरान का पर्दा चाक किया गया है। इसमें आउटडेटेड ऑब्सोलीट मशीनरी यानी पुरानी और फरसूदा मशीनरी का जिक्र है। और दानों के झड़ने का भी लिखा है, मतलब सीवियर ग्रेन शेडिंग। बिल्कुल, और इसकी वजह से हमारी कुल पैदावार का 8 से 10% हिस्सा जाया हो रहा है, जो कि एक बहुत भारी माली खसारा है। जरा इस बात का तसव्वुर करें, 8 से 10% नुकसान, मतलब ये तो ऐसा ही है जैसे कोई शख्स एटीएम मशीन से महीने भर की कमाई निकाले और वो एटीएम हर 10वां नोट खुद ही काट कर रद्दी की टोकरी में फेंक दे। ये तो सीधा सीधा जुल्म है। जी, ये एटीएम वाली मिसाल इस सूरत हाल की बिल्कुल दुरुस्त अक्कासी करती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मैकेनिकल तौर पर ऐसा क्यों हो रहा है? पुरानी मशीनें ऐसा क्या गलत कर रही हैं कि हमारा सोना मिट्टी में मिल रहा है? देखें, जो रिवायती हार्वेस्टर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके कटर बार्स और ब्लेड्स धुंध हो चुके हैं। उनका डिजाइन इंतहाई पुराना है। अच्छा, जब वो पौधे को काटते हैं तो सफाई से तराशने के बजाय एक शदीद झटका देते हैं, और जब फसल पकी होती है तो दाने बहुत नाजुक हालत में जुड़े होते हैं। ओह, तो इस मैकेनिकल झटके से दाने मशीन में जाने से पहले ही जमीन पर गिर जाते होंगे। जी बिल्कुल, और इसी को एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की जबान में ग्रीन शेडिंग कहते हैं। ये तो बहुत बड़ा अलमिया है, मतलब किसान को पता भी नहीं चलता कि उसने अपने ही खेत में अरबों रुपए गिरा दिए हैं। तो फिर इसका साइंटिफिक हल क्या है? अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है द हाई टेक सोल्यूशन, और यहाँ इसका हाई टेक हल मौजूद है। जदीद कंबाइन हार्वेस्टर्स जिनका मकसद कटाई के बाद नुकसानात को सिफर तक लाना है, यानी जीरो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। सही, ताकि किसानों के मुनाफा का तहफ़्फ़ुज़ हो और कौमी ग़िज़ाई ज़खायर महफूज रह सकें। जीरो लॉस, मैं यहाँ थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगी। क्या हकीकत में खेत की नाहमवार जमीन पर 0% नुकसान वाकई मुमकिन है, या ये सिर्फ प्रेजेंटेशन को जाजिब नजर बनाने का दावा है? देखें, आपकी तनकीद वजह है। इंजीनियरिंग की दुनिया में कुछ भी 100% परफेक्ट नहीं होता। सिफर नुकसान दरअसल एक कमर्शियल बेंचमार्क है, जिसका मतलब है कि नुकसान इतना कम हो जाता है कि मुआशी तौर पर उसकी अहमियत नहीं रहती। अच्छा, और जो सेंसर्स उनमें लगे हैं, क्या वो हमारे जून जुलाई की गर्मी और धूल बर्दाश्त कर लेंगे? खराब तो नहीं होंगे? बिल्कुल खराब नहीं होंगे। इन जदीद हार्वेस्टर्स में सिर्फ ब्लेड्स नहीं होते हैं, बल्कि उनमें एयर फ्लो सिस्टम्स और न्यूमेटिक कंट्रोल्स होते हैं। वो कैसे काम करते हैं? जब ब्लेड फसल को काटता है तो मशीन के अंदर एक मुतवाजन हवा का दबाव पैदा होता है, जो दानों को वैक्यूम क्लीनर की तरह खींचकर सीधा मेन टैंक में ले जाता है। और सेंसर्स इंडस्ट्रियल ग्रेड के बनाए जाते हैं ताकि मिट्टी और गर्मी बर्दाश्त कर सकें। वाह, यानी हवा का दबाव दानों को गिरने ही नहीं देता, और ये सेंसर्स ब्लेड्स की रफ्तार को भी एडजस्ट करते हैं, है ना? जी बिल्कुल, फसल की नमी और मोटाई के हिसाब से रफ्तार खुदकार तौर पर कम या ज्यादा होती है। ये तो वाकई कमाल की टेक्नोलॉजी है। ऐसा लगता है मशीन का अपना दिमाग है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ फाइलों तक महदूद है या फील्ड में कुछ हो भी रहा है? अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है करंट डिप्लॉयमेंट। खुशकिस्मती से ये महज कागजी मंसूबा नहीं रहा। इस स्लाइड पर हम देख सकते हैं कि 30 जदीद तरीन हार्वेस्टर्स बाकायदा फील्ड में फराहम कर दिए गए हैं। अच्छा, 30 हार्वेस्टर्स फील्ड में आ भी गए? जी, सर्विस प्रोवाइडर्स मुतहरिक हो चुके हैं और फील्ड से इंतहाई मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। कटाई के रिवायती निज़ाम में वाकई एक इनकलाबी तब्दीली आ रही है। ये तो बड़ी तसल्ली बख्श बात है। लेकिन मुझे हैरानी इस बात पर है कि हमारे मकामी लोगों ने इतनी पेचीदा टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी अपना कैसे ली? हम तो सोचते हैं कि हमारा किसान आम टेक्नोलॉजी से घबराता है। जी, और यही तो इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी कामयाबी है। मतलब क्या ये टेक लिटरेसी वाकई हमारे देहातों में जड़ पकड़ रही है? वो सेंसर्स वाली मशीनें चला रहे हैं? बिल्कुल,
जावेद कमर साहब के सेमिनार्स की बदौलत पढ़े लिखे नौजवानों ने साबित किया है कि अगर दुरुस्त तरबियत मिले तो वो पेचीदा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग बआसानी समझ सकते हैं। उन्हें पता है कि डैशबोर्ड पर एरर आए तो क्या करना है। जबरदस्त, यानी टेक्नोलॉजी से दूरी का तस्वर टूट रहा है। अब मकामी सतह की तो समझ आ गई, लेकिन JQ ग्लोबल का विजन तो हमें आलमी दुनिया से जोड़ता है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है ग्लोबल बेंचमार्क्स। जी, इस स्लाइड में स्मार्ट फार्मिंग के आलमी मेयारात पर बात की गई है। इसमें ब्राजील की कमाल की टेक्नोलॉजी और ऑस्ट्रेलिया का कंट्रोल्ड ट्रैफिक फार्मिंग निजाम शामिल है। ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, मुझे ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया की जमीन का हमारे पंजाब से क्या ताल्लुक, और ये कंट्रोल्ड ट्रैफिक फार्मिंग मतलब CTF मैकेनिज्म क्या है? देखें, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के उसूल हर जगह एक जैसे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के CTF मॉडल को समझना बहुत जरूरी है। होता यह है कि जब भारी ट्रैक्टर खेत में बार बार गुजरते हैं तो टायरों के दबाव से जमीन दबकर पत्थर जैसी सख्त हो जाती है। अच्छा, जिसे सॉइल कंपैक्शन कहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। अब आप खुद सोचें, जब मिट्टी ईंट की तरह सख्त होगी तो पौधे की नाजुक जड़ें नीचे कैसे जाएंगी? जी, और पानी भी तो जज्ब नहीं होगा, फिर ऊपर ही खड़ा रहेगा। बिल्कुल, और बुखारात बनकर उड़ जाएगा। तो CTF इसका हल निकालता है। GPS की मदद से ट्रैक्टर और हार्वेस्टर के लिए खेत में मखसूस रास्ते बना दिए जाते हैं। ओह, मतलब मशीन हमेशा उन्हीं पटरियों पर चलती है। तो बाकी की जमीन का क्या? बाकी की 80% जमीन पर टायर कभी नहीं जाते। वो बिल्कुल नरम रहती है, जड़ें गहरी जाती हैं और पानी का कतरा जाया नहीं होता। ये प्रिसीजन हार्वेस्टिंग सिस्टम्स का कमाल है। वाह, ये तो इंतहाई स्मार्ट तरीका है। और जो आखिरी नुक्ता है, फसलों की बाकियात जलाने का सद्भाव। ये तो हमारे यहाँ स्मॉग का सबसे बड़ा मसला है। जी, रिवायती तौर पर किसान अगली फसल की जल्दी में मिट्टों को आग लगा देते हैं। इससे फिजा भी जहरीली होती है और मिट्टी के दोस्त माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जल जाते हैं। तो जदीद मशीन इसका क्या करती है? उनमें एक चॉपर लगा होता है जो बाकियात का बारीक चूरा करके मिट्टी में मिला देता है, जो बाद में बेहतरीन कुदरती खाद बनता है। यानी कुदरत के निजाम को तबाह करने के बजाय उसे फायदा पहुंचाया जा रहा है। और मिट्टी की इसी सेहत की बात हमारी अगली स्लाइड से जुड़ी है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है सॉइल डायग्नोस्टिक्स। ये स्लाइड इंतहाई अहम और साइंसी है। इसमें मिट्टी की तशखीस पर जोर दिया गया है, जैसे SFRI सैचुरेशन तरीका इस्तेमाल करें, नमकियात और सोडिसिटी में फर्क करें। एक मिनट रोकूंगी आपको। ये SFRI सैचुरेशन तरीका क्या है? अक्सर कह देते हैं कि टेस्ट करवाएं जैसे कोई खून का टेस्ट हो, लेकिन ये कीमियाई तौर पर कैसे काम करता है? मैं इसे साइंसी तौर पर बताता हूँ। ये लेबोरेटरी में मिट्टी की जांच का मुस्तनद अमल है। इसमें मिट्टी का नमूना लेकर डिस्टिल वाटर के साथ एक पेस्ट बनाया जाता है ताकि मिट्टी 100% सैचुरेट हो जाए। अच्छा, मतलब इसमें मजीद पानी जज्ब करने की गुंजाइश न रहे। बिल्कुल। फिर इस पेस्ट से पानी का अर्क निकालकर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और नमकियात का बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा लगाया जाता है। सही। तो इस टेस्ट से पता चलता है कि जमीन में नमकियात है या सोडिसिटी, लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है? आम किसान तो सफेद तह देखकर समझता है कि बस कलर लगा है, पानी से धो दो। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। नमकियात तो वाकई पानी में हल होकर नीचे चले जाते हैं, लेकिन अगर मिट्टी में सोडियम खतरनाक हद तक ज्यादा है, यानी सोडिसिटी है, तो फिर पानी काम नहीं करेगा। जी नहीं, सोडियम मिट्टी के जर्रात को इतनी सख्ती से चिपका देता है कि पानी नीचे जा ही नहीं सकता। ऐसी जमीन को पानी से भरेंगे तो वो सेम और धूल का शिकार हो जाएगी। इसका इलाज जिप्सम है, पानी नहीं। ये तो वाकई आंखें खोल देने वाली हकीकत है। और ये जो कैलकेरियस मिट्टी का जिक्र है जिसमें चूना ज्यादा होता है, क्या वो पौधों को खाद नहीं मिलने देती? जी हाँ, चूना फास्फोरस जैसी खादों को कीमियाई तौर पर कैद कर लेता है। किसान खाद डालता रहता है लेकिन पौधे को नहीं मिलती। इसका हल मिट्टी के pH को मुतवाजन करना है। ये सब जांचने के लिए खेतों में सेंसर्स और खुदकार आबपाशी के आलात लगेंगे, लेकिन हमारे गांव में तो बिजली ही नहीं होती, तो ये हाईटेक निजाम तो दम तोड़ देगा, है ना? और बिल्कुल इसी खला को पूरा करने के लिए सोलर पावर एक गेम चेंजर के तौर पर सामने आती है। हम उन सेंसर्स को रिवायती बिजली पर नहीं छोड़ सकते। तो शमसी तवानाई से ये डिवाइसेस खुद कफील हो जाती हैं? बिल्कुल, सोलर पैनल्स दिन भर तवानाई देते हैं जिससे डेटा क्लाउड सर्वर्स तक पहुंचता है, और वो भी जीरो एनर्जी कॉस्ट पर। जबरदस्त, यानी शमसी तवानाई इस पूरे इकोसिस्टम की धड़कन है। अगर हम आज की गुफ्तगू समेटें तो 30 अरब के मंसूबे से शुरू होकर बात हार्वेस्टर्स की एयर फ्लो टेक्नोलॉजी, ओबर मॉडल और मिट्टी की केमिस्ट्री से होती हुई सोलर पावर तक पहुंची है। जी, जावेद कमर साहब का विजन साबित करता है कि ज़राअत महज बीज फेंकने का नाम नहीं, एक बाकायदा साइंस है, और देही मईशत को पायदार बनाने के लिए रिवायती तरीकों की अब गुंजाइश नहीं बची। बिल्कुल। और हमारे सुनने वालों के लिए जाते जाते मैं एक गौर तलब सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जरा तसव्वुर करें, वो दिन दूर नहीं जब हमारा किसान खेत में हल चलाने के बजाय शमसी पैनल्स के साए में बैठा ड्रोन्स और स्मार्टफोन से डेटा का तज्जिया कर रहा होगा। जी बिल्कुल। Secure your export contracts today. Subscribe to JQ Global Agriculture. WhatsApp +9234998418886. Website www.jguglobal.official.com. Coming soon.